السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ لاہور دھرمپورہ بیجنگ انڈر پاس پر فائرنگ کا نوٹس لے لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے پولیس کی مدیریت میں ازداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا ٹانک میں چیک پوسٹ پر خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مزید کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے اور وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو۔ رمضان المبارک میں چٹپٹی اشیاء کی طلب بڑھنے پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کا لاہور بھر میں گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق 14 ریسٹورنٹس اور سموسہ یونٹس کی چیکنگ میں ناقص انتظامات پر 2 یونٹ سیل کر کے 3,80,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ناقابل استعمال آئل، صفائی کی خرابی اور غیر معیاری سٹوریج پر سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیمیں 3 شفٹوں میں جعل سازی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کام کر رہی ہیں۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے پرائیویٹ گاڑیوں پر پولیس لائٹس، سیاہ شیشوں اور بوگس نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ غیر قانونی سائرن اور لائٹس والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک روکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ ٹریفک کی روانی اور حادثات سے بچاؤ کے لیے لین اور لائن کی پابندی پر سختی سے عمل کروایا جائے گا۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے مزید کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ مل کر ان احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ شادباغ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دوران آپریشن 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 4400 گرام چرس بھی برآمد ہوئی۔ مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے کامیاب کارروائی پر شادباغ پولیس کو شاباش دی اور کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ لاہور پولیس نے شہداء کی 7ویں برسی پر شہید سب انسپکٹر محمد اسلم، منظور احمد، کانسٹیبل ظفر اقبال اور محمد سعید کی قبور پر حاضری دی، سلامی پیش کی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی۔ شہداء 14 مارچ 2018 کو رائیونڈ دھماکے اور مجرمان کی گرفتاری کے دوران شہید ہوئے تھے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ پولیس شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کی زیر نگرانی گلشن راوی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کارروائی میں بدنام زمانہ 4 منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا، جن کے قبضے سے 4 کلو 480 گرام چرس بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دی گئی۔ ایس پی بلال احمد نے ایس ایچ او گلشن راوی اور پولیس ٹیم کو شاباشی دیتے ہوئے ازداد منشیات کے لیے کڑی نگرانی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ رائیونڈ پولیس نے واردات کی منصوبہ بندی ناکام بنا کر دولا مولا دربار کے قریب سے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان محمد سہیل اور ملک تنویر کے قبضے سے موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ ملزمان رائیونڈ، مانگا منڈی اور سندر میں وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ایس پی صدر ڈاکٹر غیور احمد خان نے کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او رائیونڈ اور ٹیم کو شاباش دی اور جرائم کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ چوکی فردوس مارکیٹ پولیس نے دفاتر جاتے شہریوں کو لوٹنے والے 3 رکنی ڈکیت گروپ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے لاہور کے مختلف علاقوں سے پکڑا گیا۔ ملزمان سے نقدی، موبائل فون اور 2 پسٹل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا سی بی ڈی پنجاب کا دورہ، سی ای او عمران امین نے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ بلال یاسین نے سی بی ڈی قائد ڈسٹرکٹ روٹ 47 باب ڈسٹرکٹ والٹن روڈ اور این ایس آئی ٹی سٹی کا جائزہ لیا۔ وزیر ہاؤسنگ نے کہا کہ سی بی ڈی پنجاب صوبے کے لیے گیم چینجر ہے اور این ایس آئی ٹی سٹی جدید دور کا آغاز ہے۔ سی ای او سی بی ڈی کا کہنا تھا کہ والٹن روڈ اپ گریڈیشن سے 10 لاکھ افراد مستفید ہو رہے ہیں اور منصوبے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق مکمل کیے جا رہے ہیں۔
रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में जहां देखो सहरी और अफ्तारी के दस्तरखान सजे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह सेवन शरीफ में भी सफ़ेद पोश लोगों तक पकी पकाई सहरी और अफ्तारी का अहतमाम किया जाता है। मज़ीद तफसील बताएंगे अब्दुल सलाम सोलंकी। जी अब्दुल सलाम, बताइएगा। बिल्कुल दुनिया भर की तरह सेवन शरीफ में मुख्तलिफ तंजीमों के हवाले से रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। इस हवाले से मौजूद है माहिनूर फाउंडेशन के चेयरमैन जमशेद लाखो। मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानूर फाउंडेशन की तरफ से आज सहरी कराई जा रही है और इस सहरी में हमारे साथ ताउन किया है SHO 7 जुल्फ़िकार उडर साहब। 7 पुलिस का ताउन से ये आज सहरी कराई गई। आज सहरी में मुख्तलिफ आइटम बने हुए हैं जिसमें मछली तली हुई है और मछली का सालन है, छोला घोटाला है, अंडा घोटाला है। उसके अलावा हमारे पास दही का आइटम किया गया है और लच्छेदार पराठे हैं, चपाती है। और इनके अलावा हम जो ये सफ़ेद पोश मुहिम चला रही हैं जिसमें हम ये शहरी सफ़ेद पोश मुहिम की तरह से हम घर घर दहलीज तक पहुंचाते हैं और गरीब मुस्तकिन तक ये शहरी हम पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, आपने जमशेद लाखो माइनूर फाउंडेशन के चेयरमैन की बातें सुनी। उन्होंने कहा, ये कहना था कि जैसे ये सहरी होती है हम पूरे निज़म तरीके से लोगों तक और सफ़ेद पोश जो लोग हैं उन तक पहुँचाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम सोलंकी ने हमें अपडेट किया। चकवाल के इलाके थाना नीला के गांव सिखराला में शोहर की वफात के बाद शोहर के बड़े भाई ने बेवा भाभी और यतीम बच्चों से सब कुछ छीन लिया। मजीद तफसील बताएंगे चौधरी हारून। जी हारून, बताइए। बेवा गुलाम हैदर, इनसे जानते हैं कि इनकी शोहर के वफात के बाद इनके साथ क्या हुआ। जी, आपके साथ आपकी शोहर की वफात के बाद आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? जी, मेरे शौहर ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਪਾਇਆ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਇੰਤਹਾਈ ਲੜਾਕਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। आपकी शोहर की जब वफात हुई है तो आपकी कोई ज़मीन, कोई घर वगैरह था? ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ 60 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 10 ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਛੋੜੇ ਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੋੜੇ। इसके अलावा आपका कोई सामान, कोई? जी मेरा जहेज आया, मेरे जेवर आया। क्या क्या था आपके सामान? जहेज में आपके क्या था वो हमारे नाज़रीन को बताएं। जी मेरा पूरा फर्नीचर आया, मेरे जहेज का, मेरे सास का, उसका भी कोई फर्नीचर आया, चारपाइयाँ वगैरह या बिस्तरे वगैरह, ये बर्तन और सोना जेवर भी आया, 8 तोले सोना आया। वो सारे दाने शाने गलोटे वगैरह ये सारा कुछ काट के एक चीज़ भी न छोड़ी। आपने कभी अकबर जो आपके जेठ हैं अकबर, उनसे आपने कभी मुतालबा नहीं किया या आपने कभी पुलिस की मदद या बिरादरी सतह पर आपने कोई मदद नहीं ली? जी मैं बिलादरी नाल गल कीती है, बिलादरी वाले भी आख्या कि भी नहीं कोई नहीं, ते मैं फिर शाम नाल गई हाँ, DPO कोल भी गई हाँ, दरखास्त कीती है, लेकिन मेरी सुनवाई कोई नहीं हुई। तो अभी आपको ये कैमरे के सामने आपको आला इदारे देख रहे हैं, आला हुक्मरान देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? जी मैं अपील करांगी मैडम मरियम नवाज अगे, IG साहब दे अगे कि खुदारा यतीम बच्चों ਨੂੰ मेरा हक दिलाया जावे, घर दिलाया जावे। मेरे छोटे छोटे बच्चे नो ना कोई घर है ना बाहर है। ये थी बेवा गुलाम हैदर जो आपके साथ मुखातिब थी। आज से चंद हफ्ते कबल चकवाल थाना नीला के एक गांव में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया जहां अपनों ने ही एक बहन और भाई को अपने ही घर में कैद कर दिया और उसके बाद उन पर जुल्म तशद्दुद किया गया। किसी गुमनाम शहरी की शिकायत पर बर वक्त इदारों ने एक्शन लिया और भाई को तो ज़िंदा बाजियाब करवा लिया, लेकिन बहन इस दुनिया से जा चुकी थी। हमारी इस बहन की अपील मैं तुम्हारा वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के पास कि इनको इनका हक़ दिलवाया जाए। IG पंजाब से अपील कर रही हैं कि मुझे मेरा हक़ दिलवाया जाए। मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, मेरे साथ
इंसाफ किया जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी हारून ने हमें अपडेट किया। जेलम में शेख अजहर टीपू डायरेक्टर मियाँ जी होटल की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी और मकामी अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं, शेख बरादरी के नुमाइंदों और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में शेख अजहर टीपू को अल शेख कम्युनिटी जेलम का सदर और शेख उस्मान को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया, जिस पर शुरका ने मुबारकबाद पेश की। शेख जुल्फी ब्यूरो चीफ स्पेशल टीवी जेलम भी शरीक हुए। साहिवाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गला मंडी सरकी बाजार में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइएगा। मंडी का इलाका सिरकी बाजार मौजूद है। यहाँ पे तजावुज़ात का ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ लोगों की शिकायत है कि ये ऑपरेशन सियासी है। कि आपको पता है कि ये पूरे पंजाब में मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर साहबा के हुक्म से सुथरा पंजाब का ये जो तजावुज़ात का ऑपरेशन ये चल रहा है, इसी सिलसिले में ये काम हो रहा है। जो पुख्ता इंक्रोचमेंट है, जो मेन कमर्शियल रोड्स हैं, कमर्शियल बाजार हैं, उनसे तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है। इसी सिलसिले में ये कार्रवाई हो रही है। पीछे ना हम लोग गए, कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये मतलब सियासी ऑपरेशन है, किसी के कहने पर कोई सियासी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक इशू है पीछे, वो एक मकान है, उनके पास रजिस्ट्री है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए, हदबंदी के लिए पटवारी मुल्क जो इस हल्के का है उनसे रब्ता हो गया है। वो इसकी निशानदेही करेगा। अगर नजायज हुआ तो बिल्कुल गिरेगा। ज्यादती नहीं किसी के साथ होगी। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। ऑपरेशन इंचार्ज का कहना है कि ये कोई सियासी ऑपरेशन नहीं है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। निकले छड़ी आ रहे पीटी वाले लंघाई ਜਾਂਦੇ ਟੋਏ ਖੱਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਮੋਲ ਕੋਕੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਮਲਕਰਸ਼ਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਬਿੱਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ छोटे गौशाला से जाके चार के लिया नहीं ढाया, तुझे आके मारी जाते रहता है। इधर के साइड वाला रहता है इधर। ये लोगों को बस जो हमने तोड़े हुए हैं उनको तोड़ रहे हैं, जो तोड़े हैं उनको तोड़ रहे हैं, जो नहीं तोड़ने वाले उनको छोड़ के जा रहे हैं। अंदर है जी ऐसे जगह दी है ਉਹਨੂੰ ਢਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਲਕੀਅਤ ਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਗਿਰਾਰ ਹੈ। ਖਾਲੇ ਤਿੱਕਰ ਇਸ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਢਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਰੁਕ ਸਕਦੀ? गवर्नमेंट के कोई शाह नहीं ना रोक सकती। एक दफा जो भी करना कर। कमिश्नर साहब आए थे, गल्लामड़ी थाना भी गिराना है, वो छोड़ के जा रहे हैं। गल्लामड़ी थाने को छोड़ के जा रहे हैं, वो भी गिराना है। हाँ जी, कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया था कि ये सारा ऑपरेशन करना है आपने एक तरफ ही। ये जो लोग हैं ना जो खुद तोड़ रहे हैं उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, और जो छोड़ा हुआ है उनका कोई नहीं कर रहे हैं। मेरा मकान सी 2 बारी सर जी ਢਾ ਗਿਆ भाई। उन्होंने कहा भी सर जी ये मकान सारे इको जैसे ढवाओ, इको जैसे ढवाओ। पिछे भी देखो नुक्कड़ ते कोई मकान नहीं ढया, ना इधरली साइड ते ढया जी। मकान मेरा यही जगह सी जी सर जी, रहन खैन यही निजाम से जी दुनिया नहीं ढा रहे। देखो और सारे उवें ही खड़े है। और सियासी है ना जी, पर नुक्कर जी परली साइड ते सारे ही होना चाहिए जी। ये भी नजायज ही सारा जी। सारे नून लीग के जगह ना वो मुखालफ आ, बाकियां दे ढवाई जांदे, इन्हां बचाई जांदे। हाँ, पीटीआई दे नाल सारा कुछ हो इंतकामी कार्रवाई हो रही है सारी। लीग ने साडा बिना गर्क करता। असी जाले दी नून लीग दे, असी वोट ही नून लीग नूं जम्मे जदों दे पांडे आ। साडा खाना खराब करता, घरों बेकार करता इन्हां ने सानू। हाँ जी, कारोबार तो भी गए, घर बाहर तो भी गए असी। इन्ने परेशान होए पहले फौत की हुई है, हफ्ता होया नहीं फौत को इन्हू ते उन्होंने कहा टाइम दो सानू, कोई महीने का 15 दिन टाइम, कहते टाइम भी नहीं देना। बच्चे आ वेखो अंदर इदा ही पे आ, समान इदा खिल रहा फिरदा अंदर। देखो वो जी बात है, ये मरियम नवाज को क्या नजर आ रहा है कि मैं आगे अवाम से बोल लूँगी, कैसे बोल लूँगी। हम खुद 1947 से लेकर आज तक हम मुस्लिम लीग को वोट डाला है, तो मरियम नवाज को क्या नजर आ रहा है कि मैं आगे कैसे बोल लेके और कैसे मैं आगे आ रहा हूँ। उसके पास नहीं छाड़ते किसी ने भी। नहीं असी तो सानू क्या कहना गिरा दे, गिरा देना वा सारा। नहीं सानू नहीं, साडी जिक्ची दी जगह भाजी अभी सारा ही आपका है। नहीं कोई नहीं छाड़ते किसी ने भी, सब ये भी गिरेगी। सामने बिल्डिंग खड़ी, निशान कहने दीवार है जेड़ा तुहानू शिकायत ला रहे आओ तुहानू दिखावां अंदरों। मैं बॉडी आज जो पर्दा कर निकले हैं तो गाड़ दे बल्दिया ने कहा राह नहीं करना, कहते कट के खावांगे जिन्हें साडा जो करना कहते कर लो। सुबह कह के गई है कि तुसी इस तो अगे पिछे नहीं होना, थाने आके जवाब दियो। पर्दा लम्मा कर लिया। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया।
सानेहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले 35 साल नायक एजादार अब्बास का ताल्लुक वजीराबाद से था। वो 16 साल से पाक फौज में खिदमत अंजाम दे रहे थे और हाल ही में कोयटा छावनी से लाहौर तैनात हुए थे। शहीद ने दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। उनके वालिद जो पाक फौज के रिटायर्ड सिपाही हैं, उन्होंने बेटे की शहादत पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि वो अपने पोते को भी पाक फौज में भर्ती करवाएंगे। जो उसके दोस्त ना उधर उनसे मेरा रब्ता था आर्मी में, उन्होंने हमें बताया है कि हो गई है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने मेरे पैसे चाहता का रुतबा का फरमाया है। इस उससे मेरे पास वफाद नहीं, मुल्क वास्ते मेरी जान भी कुर्बान होगी तो मैं भी जान जा रहा। बेटे का नाम आजादार अब्बास है, नायक रैंक उसका साहब आर्मी का इंशाअल्लाह बेटा आला जवान होया तो मैं कोशिश करांगा उसकी आर्मी उठे जाएगा। साहिवाल रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह में फलों के रेट दुगने कर दिए गए। मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, इस वक्त वहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं? हुकूमत पंजाब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਹਾਂਜੀ 250 रुपए 200 कोई रुक को नहीं गा हमें ड्रामा 250 से गया 250 रुपए रहा। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ हुकूमत को महंगाई दे रही रिलीफ रमजान शरीफ से कोई रुक को नहीं गा हमें ड्रामा ही हुकूमत ने ਤੇ ਮਾੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਸ ਦਫਾ। रोटी सस्ती की थी हुकूमत ने 2-4 रुपये, बाकी और कोई चीज सस्ती को नहीं की, हर चीज महंगी है। नार का रेट 500 रुपए किलो। रमजान शरीफ तो पहले भी 500 से, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਕਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। 250 से गया 250 रुपए रहा। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ। जो ही रमजान शरीफ आया नाल ही महंगाई। ਸਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਪਾਇਨ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋਏਗਾ। 545 ਇਹ ਨਾਰ ਦਾ ਰੇਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਇਹਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 80 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਲ। ਬਾਇਆ ਗੱਲ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ 500 ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਨਾਰ ਸੇਬ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਕਮ ਕਰਨ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ 150 ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 300 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। 250 रुपए ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ महंगाई पे? महंगाई है या सस्ता काम? महंगाई है जी, महंगाई। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। मियाँ वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से विहाड़ी के नवाही इलाके 535 EB में मुस्तकीन में रमज़ान मुबारक राशन तकसीम किया गया। चेयरमैन मियाँ अकरम, सदर मियाँ उमर अब्दुल्ला और मियाँ चांद ने अपने वालिद के हमरा राशन तकसीम करते हुए कहा कि गुरबा की मदद का ये मिशन 3 साल से जारी है। फाउंडेशन राशन के अलावा स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, साफ पानी, गरीब बच्चियों की शादियां और फ्री मेडिकल कैंप जैसे फलाही काम कर रही है। अगले माह गाँव के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज का भी आगाज़ किया जाएगा। मियाँ अकरम की वालदा ने भी इस मौका पर मुस्तकीन में राशन तकसीम किया। साहिवाल में मटन बीफ के गोश्त मन मर्जी के रेट पर बिकने लगे। मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइए। जो स्टाची नॉल में मौजूद हैं, सारे जिले में यही रेट है, 1000 रुपये, 900, 1900 रुपये रेट है। ये जिला इंतजामिया की कारकर्दगी वज़ीर आला पंजाब साहब ये अमल दरामद कराने में जिला इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। सिर्फ जुर्माने की हद तक नहीं अमल दरामद होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। ये रमज़ान शरीफ का महीना है और मुक़द्दस माह में ये ज्यादती है, इसकी जिम्मेदार जिला इंतजामिया है। 1000 रुपए जी पूरा, सारे 1000 रुपए बेच रहे हैं, वो भी 1000 सही 700 रुपए कर ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਢਾਟ ਹੋਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲੱਤ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਢੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ।
तो इस वजह तो सर जी आरजी तौर ही बैठे हैं जी वहाँ जी हर पासे जेह्ड़े मसले जे बने हुए हैं। जुर्माना जुर्माने तंग करते तो हाँ जी सर जी आंदे हैं कदी कदार जी। रेट ठीक हुए फिर भी जुर्माना कर दे सर जी ज्यादा ना सफाई का ख्याल करते जी तो ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ जानवर महंगे है ना नहीं समझे हम सीरी पा के चर्बी पा के वो 700 रुपए किलो मिक्स करके दे देता। 1000 बेच रहे हो? हाँ जी 1000 बेच रहे हो? हाँ जी 1800 रुपए किलो। सरकारी रेट की है? सरकारी रेट 1500 रुपए। तू को 1800 बेच अचू बकरा करेगा भाजी इतने साफ सुथरा सुक्का असी गोश्त करी ना बकरी करिए बकरा करेगा। बकरे का ही 1500 रुपए पारू नहीं मिलता जी जानवर बहुत महंगा। वाम का कसूर तो नहीं है जी असी कितों खाना है जी डंगर ही बहुत लाभ डंगर बहुत महंगा है नहीं मिलता पे की करें। सरकारी रेट 700 रुपए सरकारी रेट तो है भाई इस बार 800 1000 नहीं लभदा पे ना करो यार कितों खावांगे ना करांगे सर फिर आवाम का कसूर ਹੁਣ ਵਾ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਨਾ रेट ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ 700 लिखा है 1000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ 900 रुपए दे रहे। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत के बावजूद लेस्को में ओवर बिलिंग का सिलसिला न रुक सका। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने मेरिट पॉलिसी की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए सीनियर तजुर्बाकार इंजीनियर्स अफसरान की मौजूदगी में जूनियर लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद उस्मान को SDO फैज़ फूल का चार्ज दे दिया, जिसने 6 माह में बैच नंबर 40 और बैच नंबर 24 लाखों में यूनिटों की ओवर बिलिंग करके फैक्ट्री मालिकान का जीना महाल कर दिया। ओवर बिलिंग के सताए साइल सरापा एहतजाज है। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, हाफिज़ तनवीर अहमद मेरा नाम है। हमारे यूनियन में बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर तकरीबन कोई 600-700 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है हमारे जो मतहत चल रहा है इस वक्त। हमारा जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है वो आ रहा है ओवर बिलिंग का। ओवर बिलिंग में इन्होंने तो इतनी इंतहा कर दी है कि हमारे लिए सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हमें अपने बिल ठीक करवाने के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर वहाँ से धक्के भी खाने पड़ते हैं। हम अपने सारे काम छोड़ छड़ा कर वहाँ जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर किसी किस्म की हमें वहाँ से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब हमारा तो ये मुतालबा होता है कि हमें जीने दिया जाए। जो इदारे पाकिस्तान में बनाए जाते हैं इसलिए कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, पाकिस्तान के अंदर उलट काम चल रहा है कि जितने भी इदारे हैं वो इंडस्ट्री को तबाह करने पे तुले हुए हैं और लोगों से पैसे छीनने के लिए और हड़प करने के लिए वो बैठे हुए हैं, और वो हमारी फलाह के लिए बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी गुजारिश ये है ईमान बाला से कि हमारे ऊपर नज़र सानी करें, हमारे जो बिलिंग है या जो हमारी परेशानियां हैं इन सबको दूर किया जाए ताकि हम सुकून के साथ अपना कारोबार चलाएं और जो टैक्स बनता है वो हम उनको टैक्स अदा करें। मेहरबानी, शुक्रिया। पोर्ट अब्बास में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम अल करीम सहरी और अफ्तारी दस्तरख्वान पर रोज़ाना सैकड़ों अफराद को सहरी और अफ्तारी फराहम की जा रही है। कारी शकीरुर रहमान और हाफिज़ मीर हमजा राफे की क़यादत में ये फलाही काम जारी है। पोर्ट अब्बास के सहाफ़ियों ने दौरा करके इसे रमज़ान के असल पैगाम की अक्कासी करार दी। चिश्तिया सर्कल में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। सहरी के वक्त मोटरसाइकिल सवार डकैत गन पॉइंट पर शहरियों को लूटने लगे। शाहकोट में डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत बाबा नूलख हज़ारी के उर्स मुबारक के इंतजाम पर इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतलका इदारों ने शिरकत की। उर्स की तकरीबात 23 से 25 मार्च तक जारी रहेंगी। DC ननकाना ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी, CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स और सफाई के खुसूसी इंतजाम की हिदायत दी। दरबार के दाखिली रास्ते पर मेडिकल कैंप लगाने और हस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड्स कायम करने का हुक्म भी दिया गया, जबकि अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। चिश्तिया चिकन सेलर का डीलर माफिया के खिलाफ एहतजाज। पूरे शहर के ब्रायलर गोश्त बेचने वालों ने हड़ताल कर दी। दुकानदारों का कहना है कि हमें ब्रायलर डीलर माफिया महंगी मुर्गी देता है, हम आवाम को कैसे सस्ता गोश्त दें। फार्म रेट 450 रुपए और बावजूद अभी 595 रुपए गोश्त बेची 700 ਤੇ 36 रुपए तो ਸਾਨੂੰ गोश्त ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 595 ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 383 रुपए ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ और डीलर हजरात ਨੂੰ ਚਾਹੇ ताकि वो भी आपकी रोजी रखन 413 रुपए।
ਹੁਣ 450 ਲੈ ਕੇ 413 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਮਾਫੀਆ, ਫੀਡ ਮਾਫੀਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੂਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ 210 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਚੂਜ਼ਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ 383 ਰੁਪਏ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਤਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਕਮ 380 ਰੁਪਏ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੀਲਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ 413 ਰੁਪਏ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 594 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। बुलान जाफर ट्रेन फायरिंग वाक़े में शहीद होने वाले फेरोजवाला राना टाउन के रहायशी सग़ीर का जस्द खाकी लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। शहीद का जस्द खाकी घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। अहले इलाका सोग में मुब्तला हो गए। शहीद सग़ीर एक बेटे समेत 5 बच्चों का वाहिद कफील था। नमाज जनाजा राना टाउन में अदा करने के बाद तदफीन मुकम्मल कर दी गई। तहसील बार एसोसिएशन मेहराबपुर के वकला का सिंध दरिया से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज। सदर बार एडवोकेट नदीम मलिक की क़यादत में नारेबाजी की गई। वकला का कहना था कि सिंध दरिया हमारी ज़िंदगी है, इस पर कोई समझौता कबूल नहीं है। सखर में दरिया सिंध पर नए कैनाल की तामीर के खिलाफ सखर, हैदराबाद और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मुश्तरका कॉल पर सखर प्रेस क्लब पर सयाफ परचम लहरा कर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सलीम और जनरल सेक्रेटरी जावेद जतोई की क़यादत में सहाफ़ियों ने शिरकत की। रहनुमाओं का कहना था कि नए कैनाल से सिंध बंजर हो जाएगा और मैशत, माहौलियात और ज़राअत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। हुकूमत से मनसूबा फौरी बंद करने का मुतालिबा किया गया। कनकोट में नामालूम मुसल्लह डाकू शहरी से ट्रैक्टर छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े के बाद जकरानी बरादरी का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने बढ़ती वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी और ट्रैक्टर की बरामदगी का मुतालिबा कर दिया। दुनिया भर की तरह मेहराबपुर और ज़िला नुशर फिरोज की तहसील कंडियारू में भी हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार होली जोशो खरूश से मनाती रही। नौजवान मुख्तलिफ चौराहों पर डांडिया रक्स कर रहे थे, जबकि रात को पूजा के बाद होलिका जलाने की रस्म भी अदा की गई। हिंदू बरादरी ने घरों और मंदिरों को रोशन करके त्यौहार की खुशियां दोबारा कर दी। रानीपुर में हफ्त ज़बान शायर हज़रत सुचल सरमत का 204वां उर्स मुबारक आज से दराज शरीफ में शुरू हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मिजाज पर चादर चढ़ाकर 3 रोज़ा तक़रीबात का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के तहत 1100 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। 204वां उर्स मुबारक हज़रत सच्चल सरमत रहमतुल्लाह अलैह का शुरू होने वाला है। आज शाम सीएम साहब अपनी चादर कुशाई करके दरगाह पर और इंशाअल्लाह जो भी तकरीबात हैं उनका आगाज़ करेंगे। और पूरे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, उनकी कोशिश है कि यहाँ पे बेहतरीन खदमात जो है सर अंजाम दे सकें। महकमा कौक़ की तरफ से भी यहाँ पे ज़ायरीन के लिए खदमत का जो मौजू होता है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और किसी नागहानी सूरत को निपटने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और पूरे जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये इवेंट जो है हर साल की तरह बेहतरीन नमूने से मनाया जाए। सामारू में हिंदू बरादरी ने होली का त्यौहार जोशो खरूश से मनाया। तकरीब में रिवायती डांडिया रक्स, होली के गीतों और बच्चों के टैबलोस पेश किए गए। शुरका ने मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की और दरिया सिंध से 6 नए कैनाल्स निकालने के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। तकरीब में बड़ी तादाद में अफराद शरीक हुए। नवाबशाह की तहसील दौड़ में दरियाओं के आलमी दिन के मौका पर जस्कम की सरबराही में बाईपास से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें STP, SUP, PTI, जमियत उलमाए इस्लाम, शहरी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने दरिया सिंध से वफाक और पीपल्स पार्टी के मिली भगत से 6 कैनाल निकालने के मुखालिफत करते हुए मनसूबा फौरी बंद करने का मुतालिबा किया। उनका मजीद कहना था कि कैनाल्स की तामीर से सिंध की ज़मीन बंजर हो जाएगी और अगर फैसला वापस न लिया गया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल।